بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسی راتیں ہیں جنہیں یاد کرتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اتہاس کا ایک بہت بڑا ستارہ آج ڈوب گیا۔ ایسی ہی ایک رات ہے 21 رمضان کی رات، وہ رات جب انصاف کا سورج ڈوب گیا، وہ رات جب علم کے دروازے پر حملہ ہوا، وہ رات جب کوفہ سچ مچ یتیم ہو گیا۔ یہ وہی رات ہے جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے رب سے جا ملے۔ مولا علی صرف ایک نام نہیں ہے، علی بہادری کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، علی علم کا دریا ہے، علی انصاف کی زندہ مثال ہے۔ وہی علی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہی علی جن کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا، وہی علی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کی، وہی علی جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہی علی جنہوں نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، وہی علی جو کسی جنگ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگے، وہی علی جو ہر جنگ میں اسلام کی ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو یا حنین، جہاں بھی اسلام کو خطرہ ہوا وہاں علی علیہ السلام نے سب سے آگے بڑھ کر شجاعت دکھائی۔ مگر علی کی مہانتا صرف جنگ کے میدان تک سیمت نہیں ہے۔ علی راتوں کو چپ چاپ غریبوں اور یتیموں کے گھر کھانا پہنچاتے تھے، اپنے کاندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر لے جاتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بہت سے یتیم بچے صرف اتنا جانتے تھے کہ ہر رات ایک رحم دل انسان ان کے دروازے پر کھانا رکھ جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مومنوں کا خلیفہ ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں علی صرف حاکم نہیں تھے بلکہ غریبوں کے سہارا تھے، یتیموں کے باپ تھے اور مظلوموں کی امید تھے۔ مگر دوستو، اتہاس کا سب سے بڑا درد یہی ہے کہ انصاف کے اس بادشاہ کو مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کہتا تھا۔ 19 رمضان کی رات تھی، کوفہ کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان دونوں کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات مولا علی کو نیند نہیں آ رہی، وہ بار بار گھر سے باہر آتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے،
वल्लाहि मा कज़ब्तु वला कुज़िब्तु, खुदा की कसम न मैंने झूठ कहा और न मुझे झूठ बताया गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी थी वह वक्त अब करीब आ चुका था। मौला अली कई बार अपनी दाढ़ी को हाथ से पकड़ते और कहते थे कि एक दिन यही दाढ़ी मेरे सर के खून से रंग जाएगी। उस रात जैसे उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि अब अपने रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। घर में उनकी बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी। उन्होंने देखा कि उनके बाबा बार बार बाहर जाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। ज़ैनब ने पूछा, बाबा आज आप इतने बेचैन क्यों हैं? मौला अली ने बेटी की तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा, बेटी आज मुझे अपने भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत याद आ रही है। फिर धीमी आवाज में कहा, बेटी वो वक्त बहुत करीब है जब तुम्हारा बाबा तुमसे जुदा होने वाला है। यह सुनकर ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मौला अली ने फरमाया, बेटी सब्र करना, क्योंकि अहले बैत का रास्ता सब्र का रास्ता है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों पास आकर बैठ गए। मौला अली ने उन्हें अपने सीने से लगाया। एक बाप की मोहब्बत उस लम्हे साफ दिखाई दे रही। उन्होंने कहा, मेरे बेटो मैं तुम्हें कुछ नसीहत करता हूँ, अल्लाह से डरते रहना, नमाज को कभी हल्का मत समझना, कुरान को थामे रखना, गरीबों और यतीमों का ख्याल रखना, पड़ोसियों के हक अदा करना। और फिर उन्होंने वह जुमला कहा जो इंसाफ की सबसे बड़ी तालीम बन गया, जालिम के दुश्मन बनना और मजलूम की मदद करना। मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि उन्होंने कभी जालिम के साथ समझौता नहीं किया और हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरफ देखा जैसे आने वाले वक्त को देख रहे हो। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अल्लाह से डरते रहना और दीन को थामे रखना। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और फज्र का वक्त करीब आ रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ चल पड़े। रिवायतों में आता है कि रास्ते में मुर्गे जोर जोर से आवाज कर रहे थे। मौला अली ने फरमाया, उन्हें रहने दो, ये आज मातम करने वाले हैं। आपको मस्जिद जाते वक्त रास्ते में जो भी मिला आप उन्हें जगाते जाते थे और कहते जाते थे, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। यानी आखिरी लम्हों तक भी उनकी जबान पर नमाज का नाम था। आप मस्जिद पहुंचे, इमामत के मुसल्ले पर खड़े हुए, नमाज शुरू हुई। जब मौला अली अलैहिस्सलाम सजदे में गए तभी अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने जहर में डूबी हुई तलवार से वार किया। तलवार सीधे मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगी। मस्जिद में चीख पुकार मच गई। उस लम्हे मौला अली अलैहिस्सलाम के होठों से जो जुमला निकला वह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आपने कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा,
काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। जिस इंसान की पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजरी हो, उसके लिए शहादत सबसे बड़ी कामयाबी होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में घर लाया गया। खबर पूरे कूफा में फैल गई। लोग रोते हुए उनके घर के बाहर जमा हो गए और वही यतीम बच्चे जिनके घर मौला अली अलैहिस्सलाम रात को खाना पहुंचाते थे, वो दौड़े दौड़े आए। हर बच्चा अपने हाथ में दूध का प्याला लेकर खड़ा था। वो मासूम बच्चे कह रहे थे, मौला अली अलैहिस्सलाम को ये दूध पिला दीजिए, मौला ठीक हो जाएंगे। के अंदर अहले बैत रो रहे थे और बाहर यतीम बच्चे दूध के प्याले लेकर खड़े हुए थे। कूफा की गलियों में एक ही आवाज गूंज रही कि अली पर हमला हो गया, अली पर हमला हो गया। 2 दिन तक जहर का असर बढ़ता रहा। मौला अली अपने बेटों को सब्र और तकवा की नसीहत करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वार से बच गया तो मेरा फैसला मैं खुद करूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो किसास में सिर्फ एक ही बार करना है। 21 रमजान की रात आई, वो रात जब इंसाफ का सूरज डूब गया। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने रब से जा मिले। जब उनकी शहादत की खबर फैली तो पूरा कूफा रो पड़ा। लोग कह रहे थे कि आज इंसाफ का सहारा चला गया, आज गरीबों का मददगार चला गया, आज यतीमों का बाप चला गया। इतिहास गवाह है कि जब तक लोगों को यह पता नहीं था कि रात को खाना देने वाला कौन है, तब तक वह रहस्यमयी इंसान उन्हें सिर्फ एक रहमदिल बुजुर्ग लगता था। मगर जब अली शहीद हुए और वह मदद आना बंद हो गई, तब लोगों को पता चला कि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। अली की शहादत सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं थी, बल्कि इंसाफ, इल्म और इंसानियत के एक बड़े दौर का अंत। आज भी जब 21 रमजान आता है तो इतिहास जैसे फुसफुसा कर कहता है कि उस रात कूफा सचमुच यतीम हो गया था। और आज भी जैसे कूफा के वो यतीम बच्चे पूछ रहे हो कि हमारा सहारा कहाँ चला गया, मगर अली का नाम आज भी जिंदा है, अली का इंसाफ आज भी जिंदा है, और अली की मोहब्बत आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। हक मौला अली अलैहिस्सलाम, हक अहले बैत अलैहिस्सलाम। नाराए हैदरी, या अली या अली या अली या अली।